2020 کو نہیں دیکھیں گے. آپ ایک نئے سال میں داخل ہو رہے ہیں ہم سب. اور میں پھر آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا نئی برکتوں کو ہم پر برسانے والا ہے. ہاللیلویا. جیسے بارش آتی ہے اور زمین سیراب ہو جاتی ہے اور پھل پیدا ہوتا ہے، اناج پیدا ہوتا ہے، ایسے ہی خدا کی برکت ہے جو بارش کی طرح ہم پر برس رہی ہے. آسمان کے دروازے آپ کے لیے کھلنے والے ہیں. جو دروازے برکتوں کے دروازے آپ کے لیے بند ہو چکے ہیں اب وہ کھلنے والے ہیں. ہاللیلویا. اس کا ثبوت آپ کو میں دیتا ہوں وہ کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ اس بڑی آفت سے بچے ہوئے ہیں جس میں ساری دنیا گھری ہوئی ہے. ہاللیلویا. زوردار تالیوں سے خدا کا شکر کریں. یہ ثبوت ہے. آپ آفت سے بچائے گئے ہیں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا نے آپ کے لیے برکتوں کو رکھا ہوا ہے. پریز دی لارڈ. سو آئیے ہم نئے سال میں کیسے داخل ہوں. ہماری ہدایت کے لیے، انسٹرکشنز کے لیے خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے لوکا، مقدس لوکا کی انجیل اس کا 13 باب، لوکا کی انجیل کا 13واں ادھیائے 6 آیت سے میں پڑھوں گا 9 آیت تک. 6 وچن سے لے کے 9واں وچن ہم دیکھیں گے. لوکا کی انجیل 13 ادھیائے 6 وچن سے لے کے 9ویں وچن تک ہم دیکھیں گے. پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی نے اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا تھا. وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا. اس پر اس نے باغبان سے کہا کہ دیکھ 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا. اسے کاٹ ڈال. یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے؟ اس نے جواب میں اس سے کہا اے خداوند اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں. اگر آگے کو پھلا تو خیر، نہیں تو اسے اس کے بعد کاٹ ڈالنا. خدا اپنی کلام سے ہم سب کو برکت دے. میرے عزیزو، خدا نے بہت سی سادہ سی باتیں میرے دل میں ڈالی ہیں جو میرے لیے اور آپ سب کے لیے. یہ جو الفاظ آپ کے سامنے پڑھے گئے ہیں یہ کسی پروفٹ کے نہیں ہیں. یسوع مسیح کے چیلوں، اس کے شاگردوں کے نہیں ہیں. کسی سینٹ، کسی مقدس آدمی کے نہیں ہیں. یہ الفاظ جو ہیں یہ خداوند یسوع کی منہ سے نکلے ہوئے ہیں. اور خداوند یسوع مسیح نے ایک بات اپنے کلام کے لیے، اپنے وچن کے لیے کہی. آسمان ڈال جائے گا، ختم ہو جائے گا، زمین بھی ختم ہو جائے گی. آسمان اور زمین ڈال سکتے ہیں پر میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ خداوند یسوع مسیح کے قدرت سے بھرے ہوئے الفاظ ہیں. قوت ہے وچن، اس کا زندگی سے معمور اور بھرپور ہے. ہاللیلویا. اور ہر وقت آپ کسی بھی طرح کے حالات میں ہو، آپ اپنی انسٹرکشنز کے لیے، اپنی رہنمائی کے لیے آپ خدا کے کلام کا وچن کا
से मदद ले सकते हैं। जिंदगी के इस खूबसूरत वक्त में जब हम आगे जाने वाले हैं नए साल में, अब खुदा हमें क्या हदायत करता है, क्या इंस्ट्रक्शंस देता है और क्या खुदा की डिमांड्स हमारे लिए। खुदा यीशु मसीह ने एक तमसील कही, पैराबल, मिसाल दी यीशु ने। यीशु ने कहा कि किसी शख्स ने पाकिस्तान लगाया। पाकिस्तान क्या है? मैंने शुरू से बड़ी दफा आपको बताया है, पाकिस्तान अंगूरों का बाग कहा जाता है। ठीक है, अंगूरों का बाग। जब कभी पाकिस्तान में क्रिश्चियन सताए जाते हैं तो हम सोचते हैं हिंदुस्तान तो ज्यादा हिंदू लोग जहां पे मेजॉरिटी में हैं वो तो हिंदुस्तान हो गए, और जहां पर मुस्लिम ज्यादा थे वो पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान यानी कि पवित्र जगह। तो हम कभी कभी सोचते हैं कि हम क्रिश्चियन भी इतने ज्यादा हैं, हम लोगों ने क्यों पाकिस्तान नहीं बनाया, हमारे बड़े बुजुर्गों ने क्यों पाकिस्तान नहीं बनाया। पाकिस्तान जो है ये कलीसिया को ज़ाहिर करता है। यीशु मसीह कलीसिया का हेड है और पाकिस्तान जो है वो कलीसिया है, खुदा के लोग हैं। कलीसिया के लिए जो नए नियम में दरख्त से तशबीह दी गई है वो पाकिस्तान है, अंगूर का दरख्त। और एक शख्स ने पाकिस्तान लगाया, अंगूर का बाग लगाया, और उसके बीच में अंजीर का दरख्त लगाया। बिब्लिकली वे में अंजीर किसको दर्शाता है या किसको जाहिर करता है? बड़ी डिटेल से मुझे अब यकीन हो गया कि अब फेसबुक से कोई मदद नहीं लेते, जो मैं मैसेज पिछले साल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप कभी भी देखते नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा मैंने मैसेजेस जो सुनाए हैं वो अंजीर के दरख्त के ताल्लुक से सुनाए हैं। इसराइल को जाहिर करता है। अंजीर जो है वो इसराइल कौम को जाहिर करती है। मेरे अजीजों, यहाँ पर आज हम मसीह कौम या इसराइल के ताल्लुक से नहीं बात करेंगे, आज हम सिंपली देखेंगे कि दरख्त का लगाया जाना, उससे डिमांड उसके मालिक की क्या है। एक खूबसूरत बाग एक शख्स ने लगाया अपने बिजनेस के लिए, और उसके दरमियान में अपनी फैमिली के लिए खूबसूरत दरख्त लगाया कि जब बड़ा होगा कुछ सालों के बाद तो उसमें फल लगेगा, और वो फल उसने अपने खानदान के लिए और अपने लिए रखा था। जब कई साल गुजर गए, वो दरख्त बड़ा हो गया और मालिक ने सोचा कि अब 4-5 साल या 2 साल या 3 साल जितना भी वक्त लगता है अंजीर के दरख्त को, मुझे इसका एग्जैक्ट नहीं पता कि वो कितनी देर के बाद फल देना शुरू करता है। जितना भी अरसा गुजरा तो आया मालिक उसके हरे भरे पत्ते देख के दूर से बड़ा खुश था और सोच रहा था कि अब तो इसमें बड़ा फल होगा। बड़ा कांटावर दरख्त है, पत्ते हरे भरे, डालियां फैली हुई, बेशुमार शाखें, डालियां बेशुमार, हरियाली बेशुमार। मालिक बड़ा खुश। अब जब आगे गया तो डालियों को हटाया, शाखों को, पत्तों को हटाया, एक डाली पे फल ना मिला, दूसरी डाली में टटोला, वहां पर भी फल ना मिला। उसका शायद टॉप पे कोई एक आधा गुच्छा लगा हो, फल लगा हो।
پر کوئی پھل نہیں ملا۔ اب اس نے سوچا کہ شاید نیکسٹ ایئر اس میں پھل لگ جائے، نیکسٹ ایئر اس میں کوئی پھل لگ جائے۔ نیکسٹ ایئر جب آیا، وقت آیا پھل لگنے کا، کوئی پھل نہیں، ویسا ہی۔ اور یہاں پر پربھو یسوع نے کہا کہ 3 سال تک اس کا مالک اس میں پھل دیکھنے آتا پر اس میں پھل کو نہ پاتا۔ اب اس نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اب اس درخت کو میں کاٹ ڈالوں، اس نے جگہ کو روک رکھا ہے، اس میں کوئی پھل تو آتا نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اس پر اتنا وقت لگا، اتنا پیسہ لگا، اور جو مالی تھا، جو باغبان تھا، اس باغ کا رکھوالا تھا، دوسرے پودوں کے ساتھ ساتھ اس درخت کی بھی وہ رکھوالی کرتا، اس کو وقت پر گوڈی کرتا، کھانا کھودتا، پانی دیتا، کھاد دیتا، اس کی ساری ضرورتوں کو پورا کرتا۔ خدا آسمان سے روشنی دیتا، ہوا دیتا، ساری چیزیں جو ہے وہ اس درخت کو مل رہی تھی، پر پھل کوئی نہیں۔ اب یہ تو نیچرل تھا کہ مالک کو غصہ آئے اور وہ باغبان کو کہے کہ اس کو کاٹنا ہے۔ ایک لمحہ کے لیے اس درخت کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں۔ خدا نے ایک درخت لگایا، اپنا نام لے کر آپ کہہ سکتے ہیں، میں کہہ سکتا ہوں کہ سیموئیل کا ایک درخت خدا نے لگایا، ہارون کا خدا نے ایک درخت لگایا، وکی کا درخت خدا نے، جمعہ خان امیر کا درخت، آپ سب کا نام بنام لے کر خدا نے ہمیں درخت کی مانند اس زمین پر رکھا ہوا ہے، اور خدا نے ہمیں اس زمین پر اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم اپنے بدن سے اس کے جلال کو ظاہر کریں، اس کے نام کو گلوری دیں، اس کے نام کو اونچا کریں۔ اس کے لیے خدا نے بڑی قیمت ادا کی، لکھا ہے کہ تم قیمت سے خریدے گئے ہو، ہماری قیمت دی گئی ہے، ہمارے لیے یسوع مسیح نے اپنا لہو صلیب پر قربان کیا، ہماری پوری قیمت دی۔ خدا نے آسمان سے کبھی بھی ہمارے لیے سورج کو نہیں روکا، خدا کا سورج ہر وقت ہر روز ہماری زندگیوں میں چمکتا رہا۔ خدا نے آکسیجن ہمیں دی، خدا نے ہمیں خوراک دی، خدا نے ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کیا، اور سال سے آپ اپنا نام لے کر دیکھیے، آپ خدا کے لگائے ہوئے پودے کی مانند ہیں۔ آپ نے کیا کون سا فروٹ خدا نے کو دیا ہے؟ آپ خدا کے لیے اس زمین پر قائم کیے گئے ہیں۔ کچھ بس اپنے خاندان کے لیے ہی سوچتے ہیں کہ میں اپنے خاندان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے آیا ہوں، کئی تو ٹائم پاس کرنے کے لیے زمین پر آئے ہیں، ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے، کچھ ان کی زندگیوں میں ہے نہیں۔ میرے عزیزوں، دوستوں، بھائی بہنوں، خدا نے آپ کو زمین پر لگایا ہے۔ خدا نے بڑی خوبصورت زمین بنائی ہے، بڑی قومیں ہیں، پر خدا کی نظر آپ پر ہے۔ آپ ایک پر خدا کی نظر لگی ہوئی ہے کہ یہ میرے نام کو اٹھائے گا، میرے نام کو اونچا کرے گا، بڑا پھل پیدا کرے گا۔ آپ کی زندگی کتنی پھلدار ہے؟ پھلدار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تار معاملہ لگ جائیں، خربوزے لگ پہ جاتے جاتے لوگ آپ کو پتھر مارے، آپ کو توڑیے، بہت چیزیں لاتے ہیں، ہم اپنی کرنیوں سے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے لوگ بھی مارتے ہیں، مارتے تو یسوع کو بھی تھے، ٹھیک ہے، پر ہم تو غلطی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تب ہو کے کھاتے ہیں۔ مزہ تو تب ہے جب ہم گناہ بھی نہ کریں، پھر لوگ ہمیں ماریں، خدا کے کلام کے لیے ماریں، یسوع کے نام کے لیے ماریں۔ کتنے ہیں آپ میں سے جو یسوع کے نام
से आपको मारा गया हो, सताया गया हो, यीशु मसीह ने कहा था दुनिया सताएगी पर तुम खुश होना, खुश होना। दुनिया सता रही है। इंडिया में आप देख रहे चर्चिस को जलाया जा रहा है। मेरे पास पिछले दिनों वीडियो थी, क्योंकि बड़ी तेजी से लोग यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता मान रहे हैं, अपना खुदा, अपना परमेश्वर मान के अपना जीवन उसे दे रहे हैं। पाकिस्तान में तो मुश्किलात हैं ही दूसरे सब कौमों के लिए, सारे धर्मों के लिए। चाइना में आप देख रहे हैं कितनी तेजी से खुदा तब्दीली को ला रहा है। अफ्रीका जो है वो बदल चुका है, और चाइना भी बड़ी तेजी से लाखों लाख लोग खुदा के पास आए। हालेलुया। आप अपना बताइए कि आपने खुदा के लिए क्या किया है। आपने आज तक क्या किया है खुदा के लिए, अपने मालिक के लिए। जब आपको ये महसूस होता है कि आपने कुछ नहीं किया, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील के 15वें बाब में। क्योंकि मेरा और आपका ताल्लुक यीशु के साथ कोई है नहीं, इसलिए हमारी जिंदगी में पालनी कोई नहीं, कोई रूह बची नहीं है, कोई रूह खुदा के पास नहीं आई। ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਦੁਲਕੀਆਂ ਵਾਂਝ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਵੀ। ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੇਖ। आपको पता है कि जितने भी दोस्त हैं मुस्लिम, उनका काम है जल्दी से दूसरों को दावत दे देना कि इस्लाम को कबूल कर लो। मेरे साथ तो बड़ी दफा वाक़या हुआ पाकिस्तान में, यहाँ पर भी, और मैं उन लड़कों की जिंदगियों से वाकिफ था। हर वक्त वो लड़कियों की ताड़ में रहते थे, हर वक्त वो गंदी बातें करते रहते थे, गंदी चीजें देखना, गंदी चीजें सुनना उन्हें अच्छा लगता था, और हमारे सामने। और क्या करते हैं, बाद में कह देते हैं इस्लाम को कबूल कर लो। वो अपना बीज डालते ही रहते हैं। मैं धीरे धीरे में कहता था अपने काम नहीं देख रहे। एक दफा मेरे अब्बू मिस्त्री का काम करते हैं, राज मिस्त्री, बनीज ब्रेड वाले जो पाकिस्तान के रहने वाले, उनके मालिकों का घर बन रहा था। तो मालकी नहीं बड़ा प्यार करती थी अब्बू जी को। लाला मेरे अब्बू को सारे लोग लाला जी कहते हैं। तो वो कहती हैं लाला जी आप इतने अच्छे हो, इस्लाम को कबूल कर लो। तो मेरे अब्बू हमेशा एक ही बात करते हैं, ओ भैन जी झूठ तुसी भी बोलते, असीं भी बोलते, लड़ते तुसी भी चंगी तरह दे, असीं भी लड़ते हैं, तुसी भी रज के नफरत करते हो, हर बुरी चीज तुसी भी कर देते, असीं भी करते हैं, असीं तो पहले ही कर देते हैं। हम अपनी जिंदगी से लोगों को क्या असर दे रहे हैं? यहाँ पर जिससे भी बात कर लो, रहते एक ही कॉन्डो में होंगे, दूसरा घर होगा भाई, दूसरे फ्लोर पे वो रहते होंगे, पर मजाल है कि सामने तो हम एक दूसरे से बड़ी खुशी से मिलते हैं, पर हकीकत में हमारे दिल एक दूसरे से जुदा है। हम देखना नहीं चाहते दूसरों को। और कहते देसियों ना नहीं मिलना है, लोकल लिफ्ट नहीं कराते, देसियों से मिलना नहीं चाहते। वो तो हमारी पादरी साहब ला देते, सब इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर हमें मिलना पड़ता है। मेरे अजीजों ऐसा मत करें। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने तो कहा अपने दुश्मनों से प्यार करो और अपने हमसाये से, अपने पड़ोसी नेबर से अपनी मानी मोहब्बत करो। आमीन। हमें जो सताते हैं, हमारे लिए जो गलत बात कहते हैं, आप उनसे भी प्यार करें, उनके लिए भी दुआ करें। हालेलुया। और ये नया साल खुदा ने हमें दिया है ताकि साल में हम नए काम करें और अपनी जिंदगी से अपने प्रभु को फल दें, हम फ्रूट दें, अच्छा फ्रूट लोगों को खुदा के पास लेकर आए। और मैंने पिछले दफा बताया, आपसे रिक्वेस्ट की कि टारगेट रखें महीने में कम से कम एक शख्स को खुदा के पास लेकर आए। आमीन। एक नई रूह
चर्च में लेकर आए। ये नहीं है कि आप उसके साथ घर में फेलोशिप करें। जब तक रूह, जब कोई शख्स जब तक खुदा के घर में नहीं आता और खुदा के खादमों के साथ उसका सही रिलेशन नहीं बन जाता, तब तक वो बचता नहीं है। आप अपने लिए कोई रूह मत जीते, आप खुदा के लिए रूहों को लेकर आए, उनको पास्टर से इंट्रोड्यूस करें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील के 15वें बाब में पहली आयत से अगर हम 8वीं आयत को पढ़ें तो बड़ी खूबसूरत बातें हमें बताई हैं। हम कैसे फ्रूटफुल हो सकते हैं, हम कैसे खुदा के लिए कारआमद हो सकते हैं। आइए पहली 8 आयतों को देखें। यीशु मसीह ने क्या कहा? अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है वो फल, जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। अब तुम इस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम रहे तो अपने आप में फल नहीं ला सकती, इसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती हैं। और अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। मेरे अजीजों, आप खुदा के शागिर्दों को देखिए। शागिर्दों ने अपनी जान की परवाह नहीं की। शागिर्दों ने हालात को नहीं देखा। हालात अच्छे हो जाएंगे तो हम मुनादी करना शुरू करेंगे, हालात अच्छे हो जाएंगे तो हम चर्च में खिदमत करना शुरू कर देंगे। उन्होंने हालात को नहीं देखा। इस्राएली यहूदी उनके खिलाफ हो गए और रोमी उनके खिलाफ हो गए, और पूरी दुनिया के लोग कलीसिया को सताने लगे, मारने लगे। पर उन्होंने यीशु की मुनादी करना ना छोड़ी। उसका प्यार सारी दुनिया को बताया कि यीशु ने सारी दुनिया के लिए, तमाम जगत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। यूहन्ना की इंजील 3 बाब में और 16वें आयत में लिखा है, परमेश्वर ने, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए, अनंत जीवन पाए। मेरे अजीजों, शागिर्द ये कहते रहे, लोगों को कलाम सुनाते रहे, दुखों में, मुसीबतों में, सताए जाने में वो अपना काम करते रहे और बहुत सारे लोगों को कलीसिया में ले आए। आमीन। जब उन्होंने शुरू किया तो 120 लोग थे। इमाल, बुक ऑफ एक्ट, रसूलों के कर्तव्य हिंदी में चैप्टर नंबर 2 को जब आप देखते हैं, वहां पर 120 लोगों की जमात थी जो यीशु के चेले थे। उन्होंने जब होली स्पिरिट को लिया तब उन्होंने पूरी दुनिया में खुदा के कलाम का प्रचार किया। हालेलुया। और एक ही जो फर्स्ट एड्रेस था, पहली दफा जब खुदा का बंदा पतरस रसूल उठ के बोलने लगा तो 3000 लोगों को यीशु के पास ले आया। हालेलुया। और उसके बाद हजारों लोग पतरस के वसीला से खुदा के घर आ गए, यीशु की कलीसिया का हिस्सा बन गए। हालेलुया। वो मारा गया, उसे भी सलीब दे दी गई। उसने कहा, मेरे यीशु के
मैं यीशु की बराबरी नहीं कर सकता, जहां यीशु के पांव थे उस तक मेरा सर करना। मरते दम तक वो यीशु का काम करते रहे और पौलुस रसूल उसका सर कलम कर दिया गया एक ही बार से। ये कहावत है, लिखा नहीं बाइबल में, ये सच भी हो सकती है, सच नहीं भी हो सकती। मैंने बड़े लोगों से सुना है, जब पौलुस रसूल के सर को कलम किया गया तो उसका सर जब उसके तन से जुड़ा हुआ तो तब भी आवाज आ रही थी। शायद उसने सर कटने से पहले जोर लगाया हो और अपनी आवाज निकालने की कोशिश की हो। उसने लफ्ज बोला यीशु। जब उसने ये लफ्ज बोला तो उसकी गर्दन काट दी गई और उसकी गर्दन जब जमीन पर जाके टकराई तो 3 दफा उछली उसकी गर्दन, जैसे आप फुटबॉल को उछालते हैं, 3 दफा उछली और उसमें से आवाज आई यीशु यीशु यीशु। अपने मरते दम तक वो खुदा के लिए काम करते रहे और रूहों को खुदा के गला में शामिल करते रहे। यीशु ने कहा जो मुझ में कायम रहता है वही फल लाता है, जिसके अंदर मेरी बातें कायम होगी वो फल लाएगा, वो कायम रहेगा और बहुत सा फल लाएगा, बहुत सा। अगर आपकी जिंदगी में फल नहीं है ना, इसका मतलब आप यीशु में भी कायम नहीं है। ना यीशु आप में है, ना आप यीशु में हैं। यीशु की कोई बात आप में नहीं, यीशु का मिजाज आप में नहीं। हमने क्रिसमस पे देखा, यीशु की कोई बात हमारे अंदर पाई नहीं जाती, इसलिए कोई फल नहीं है। हम दूसरों पर कीड़े, उनके कीड़े निकालते रहते हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, उन्होंने हमें सिखाया है। हम दूसरों को देखते रहते हैं। मेरे अजीजों, अगर खुदा के लोग शागिर्द ऐसे करते तो जो लोग उन्हें सिखा रहे थे और उन्हीं को वो कलाम सुना रहे थे, उन्हीं के लिए वो दुआ कर रहे थे, तो वो बाद में बदल कर यीशु पर ईमान ले आए। जो आपको सताते हैं आप उनको दिल से दुआ करें, दिल से उनसे प्यार करें, उनकी बातों को, बड़ी बड़ी बातों को भी इग्नोर करें। यीशु मसीह ने कहा कि एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा सुने। आप पर कोई ताना मारता है उसे मारने दें। आपका काम ये नहीं है कि आप पलट कर आप उसको 2 गालियां दें। आप ईंट का जवाब पत्थर से ना दें और ना ईंट का जवाब ईंट से दें। मेरा और आपका काम लोगों से प्यार करना है, खुदा की मोहब्बत अपने दिल में रखनी है और उनके लिए दुआ करनी है। मेरे जीजों, एक और चीज याद रखें, यीशु ने कहा कि जो दरख्त फल नहीं लाता उसको काटा जाता है, आग में डाला जाता है। और लूका की इंजील में भी यीशु मसीह ने जो कहानी, एक तमसील हमें सुनाई है, वो भी हमें ये बताती है कि जो फल, दरख्त जो है फलदार नहीं है वो काट दिया जाएगा। वो दरख्त में और आप, हमें एक और साल दिया गया है। वहां पर बाप के माली ने मालिक से कहा कि 1 साल दे देगा। शायद आपकी जिंदगी का 1 साल जो खड़ा है वो इसलिए है क्योंकि किसी ने आपके लिए सिफारिश की है, और वो सिफारिश करने वाला कौन है? तो मेरा और आपका यीशु। हालेलुया। ये साल हमें दिया गया है ताकि हम फल पैदा करें। बहुत सारे लोगों को खुदा के पास में टारगेट बनाए हर दिन का कि मैंने आज लोगों को कलाम सुनाना है, लेकिन उन सारी बातों से पहले यीशु मसीह के मिजाज को अपनी जिंदगी में ले। यीशु जैसे बने, प्यार करने वाले, माफ करने वाले, बर्दाश्त करने वाले। ये चीजें जब तक आपकी जिंदगी में नहीं होंगी तब तक आप मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। मेरे चीजों, उसके लिए हमें रूह कुदस की जरूरत है, पवित्र आत्मा की जरूरत है। एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, पूरी दुनिया में आज लोग चाहते हैं कि लोग उनकी वाह करें, लोग कहें कि ये बड़ा पावरफुल बंदा है, पावरफुल बंदी है। मुझे मेरे दोस्त हैं, मैं उन्हें कहता हूँ चर्च आओ, वो कहते हैं हम धार्मिक हुआ करते हैं। और
جب میں بات کرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جی میری وائف جو ہے لوگوں کے لیے دعا کرتی ہے، لوگ اپنے ملک میں ٹھیک ہو جاتے ہیں، دوسرے ملکوں میں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس میں میرا اور آپ کا کچھ نہیں ہے، یہ تو یسوع نام کی قدرت ہے۔ لوگ شفا پائیں گے، لوگ زندگی پائیں گے جب یسوع مسیح کے نام سے ہم دعا کریں گے۔ ہاللیلویہ۔ پر جب ہم ان کی زندگیوں پر غور کرتے ہیں، زندگیاں خدا سے دور ہیں، معجزات قدرت کے کام، یہ تو خدا جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہے۔ آج بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں معجزوں کی، ہمیں چمتکار کرنے کی، میریکلز کی پاور مل جائے، ایسا ہی ہے نا؟ وہ چاہتے ہیں ہمیں ہولی اسپرٹ کے گفٹ مل جائیں۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہولی اسپرٹ کے گفٹ ہے اور دوسری چیز جو ہے ہولی اسپرٹ کے فروٹس۔ آج چرچ جو ہے وہ ہولی اسپرٹ کے گفٹ ہی مانگتا ہے، جس میں پروفیسی ہے، نبوت کرنا ہے، ٹنگز انیہ بھاشاؤں میں، غیر زبانوں میں دعا کرنا ہے، غیر زبانوں کا ترجمہ ہے، بھوت نکالنا، بدروحوں پر اختیار ہے، بیماروں کے لیے شفا کی نعمت ہے، معجزے کرنے کی نعمت ہے۔ نو گفٹ، نو نعمتیں ہیں، لوگ ان کے پیچھے جاتے ہیں، پر آج ایک چیز کو وہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ ہے ہولی اسپرٹ کے پھل۔ یہ آپ کو کہاں پر ملیں گے؟ کس دکان سے ملیں گے؟ کس جگہ سے ملیں گے؟ یہ آپ کو یسوع سے ملیں گے، اور آپ کو اگر آپ دیکھیں تو گلکیوں کے خاتمے میں بھی آپ کو مل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو میرے ساتھ دیکھیے ذرا گلکیوں کے ساتھ کو، اس کے 5ویں باب کو۔ جتنے لوگ دعا کرتے ہیں کہ ان کے پاس گفٹس آئے، ہولی اسپرٹ کی نعمتیں آئیں جو میں نے گنائی آپ کو، اور وہ ساتھ ساتھ دعا کریں کہ ہمیں ہولی اسپرٹ کے فروٹ بھی ملیں گے، اور وہ کیا ہے؟ گلتیوں 5واں باب، بیٹے آپ پڑھو 5واں باب، اس کی 22ویں اور 23ویں آئے۔ میں بات میں پڑھ دوں گا تاکہ وہ ریکارڈ میں آ جائے۔ گلتیوں 5واں ادھیائے 22واں اور 23واں وچن۔ مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے، ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ آمین۔ اور اس کی اگلی آیت میں پڑھتا ہوں، اور جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ ہاللیلویہ، آمین۔ میرے عزیزو، ہم چاہتے ہیں کہ ہم چمتکار کرنے والے، بڑے بڑے کام اچنبے کرنے والے ہوں خدا کی قدرت سے۔ اس میں کوئی برائی نہیں، ہمیں ہونا چاہیے، ہمیں برکتوں سے، نعمتوں سے بھرا ہونا چاہیے، پر اس بات کو کبھی نہ بھولے خدا کی نعمتیں ہی نہیں ہیں بلکہ روح القدس کے پھل بھی ہیں، ان کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے۔ اور روح القدس کے پھل جیسے اینا نے پڑھا ہے، مگر روح کا پھل یہاں پر سنگولر ورڈ ہے، روح کا، روح کے نہیں ہے، روح کا پھل ہے۔ وہ پھل کیا ہے؟ سب سے پہلے اس پھل کی کیا خاصیت ہے؟ روح کا پھل محبت۔ آج کسی کی کمی ہے خاندانوں میں، کلیسیوں میں، محبت کا فقدان ہے، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ میرے عزیزوں، ان چیزوں کے لیے ہم خدا سے دعائیں نہیں کرتے۔ ہم پرہیزگار ہیں، ہم محبت کرنے والے ہوں، ہم برداشت کرنے والے ہوں، ہم خوش رہنے والے ہوں، اطمینان، سکون، شانتی ہمارے اندر ہو، اور یہ سب کچھ پوتر آتما ہمیں دے سکتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزوں، نیکی کا پھل، ایمانداری کا پھل،
परहेजगारी का फल। आज जरूरत है कि ये फल हमारी जिंदगी में नजर आए। आपका और मेरा खुदा हमारी जिंदगी में फल देखना चाहता है। एक तो वो जो हम प्रोड्यूस करें, हम लोगों को खुदा के पास लेकर आए, और दूसरा होली स्पिरिट का फल खुदा हमारी जिंदगी में देखना चाहता है। आज कलीसियों में उस फल की कमी पाई जाती है। हम परहेजगार नहीं। परहेजगारी से मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर ने आपको बताया शुगर तो आपने चीनी नहीं खानी, वो एक अलग चक्कर है। परहेजगारी का मतलब है गुनाह से परहेज करना, गंदी बातों से, बुरी बातों से, बुरी महफिलों से परहेज करना। आओ चीजों खुदा के हुजूर झुके और आज खुदा के हुजूर वादा करें कि खुदा मैं तेरे लिए फल लाऊंगा। शायद आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो आप कलाम नहीं सुना सकते, वचन नहीं शेयर कर सकते। ये जरूरी भी नहीं है कि सारे लोग वचन शेयर करें। अनिल जो है वो कंप्यूटर को बेहतरीन जानता है। आप कंप्यूटर के जरिए जो भी इससे ताल्लुक चीजें रखती हैं, आप चर्च में उन चीजों से खुदावंद की सर्विंग करें। ऊपर ये जो आपको स्टार नजर आ रहा है, ये जो है ये प्रोजेक्टर के लिए जो कंप्यूटर के साथ अटैच होता है, जिससे आप सारे गीतों को देख सकते हैं, सारे मैसेज को देख सकते हैं, आप वीडियो सामने लगा सकते हैं। जो आपको वीडियो चाहिए, तस्वीर चाहिए, आप इस तरह से खुदा की जो है वो खिदमत कर सकते हैं। जो म्यूजिक बजाते हैं वो म्यूजिक बजाकर खुदा के हुजूर फ्रूट को ला सकते हैं। आमीन। आप जो कुछ कर सकते हैं, कोई इलेक्ट्रिशियन है, जब चर्च में इलेक्ट्रिशियन का काम की जरूरत हो, वो इस तरह से खुदा के लिए कुछ कर सकता है। जो दुआ कर सकता है वो दुआ करे। हालेलुया। आपके पास जो भी थोड़ा जो टैलेंट है उसको खुदा के लिए इस्तेमाल करें, ताकि आप फ्रूटफुल हो, खुदा के लिए फायदामंद हो। आमीन। खुदा के घर के लिए फायदामंद हो। खुदा आपको बरकत दे। आइए अपने स्वरूप को झुकाएं।